Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. Today's point of discussion will be Section 107 to Section 108A of Indian Penal Code, which is a part and parcel of chapter of abatement. So we will discuss three sections under this particular lecture. Section 107 deals with what is mean by abatement, what exactly comes in the category of abatement. Section 108 deals with who can be called as an abater. तो सेक्शन 107, 108 और 108 ए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. अबेटर मींस व्हाट, अबेटमेंट मींस व्हाट, ये हम डिस्कस करेंगे. अबेटर किसको कहेंगे ये भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. एज वेल एज वी विल डिस्कस the question asked by the examiner on this particular topic and question which may be asked by the examiner on this topic. So without wasting your much time, let's start the topic. Abatement, section 107 to 108A of Indian Penal Code. So section 107 deals with abatement of a thing. So a person abates the doing of a thing who first instigate any person to do that thing. Suppose a person is said to abate another person to do a certain thing if he instigate any person to do that thing. तो अबेटमेंट हम किसको कहेंगे? अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करता है कुछ चीज करने के लिए, उकसाता है कोई चीज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अबेटमेंट. देन सेकेंडली, engage with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission take place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that particular thing. So if any person engage with one or more other person in any conspiracy for doing any act, or if an act or illegal omission take place in pursuance of that particular conspiracy, so in order to the doing of that particular thing. तो कोई पर्सन अगर दूसरे पर्सन से एक से या एक से ज्यादा पर्सन से मिलके कोई कॉन्स्पिरेसी करता है कोई एक्ट करने की और या कोई ओमिशन करने की, और वो एक्ट या ओमिशन के दौरान वो कॉन्स्पिरेसी करते वक्त जो भी एक्ट होगा, जो भी इलीगल एक्ट होगा, ओमिशन होगा उस एक्ट करते वक्त, तो दैट इज कॉल्ड अ इंस्टिगेशन, अबेटमेंट. तो पर्सन किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करता है, किसी के साथ मिलकर कोई एक्ट करता है या कोई ओमिशन करता है, तो वो भी इंस्टिगेशन में, अबेटमेंट के डेफिनेशन में आएगा. थर्डली, intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. So if any person intentionally provides any kind of aid to any person while he is doing any illegal act, so the doing of that thing also comes under the category of amendment. So अगर कोई पर्सन कोई इलीगल एक्ट करने में मदद करता है या कोई ऐसा एक्ट जो करने की ड्यूटी है और पर्सन ओमिट कर रहा है, वो ओमिशन में अगर मदद करता है, एड करता है, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अबेटमेंट. तो मैं अगर कोई पर्सन कोई इलीगल एक्ट कर रहा हूंगा और मैं उसकी मदद कर रहा हूं एक्ट करने में, तो मैं अबेटमेंट के लिए लायबल रहूंगा. या ऐसा पर्सन के जो इस पर्टिकुलर चीज करने की उसकी ड्यूटी है और वो ड्यूटी नहीं कर रहा है और वो करने में मैं उसकी मदद कर रहा हूं, तो मैं अबेटमेंट के लिए लायबल रहूंगा. तो ये तीन चीजें है, एक तो इंस्टिगेट है या इंस्टिगेशन, किसी को इंस्टिगेट करता है तो अबेटमेंट है, किसी के साथ इंगेज होता है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो भी अबेटमेंट कहेगा, और तीसरा किसी को इंटेंशनली मदद करता है इलीगल एक्ट करने के लिए, तब भी अबेटमेंट की ही डेफिनेशन में आएगा. देयर इज अ सर्टेन एक्सप्लेनेशन to section 107, a person who by willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact
which he is bound to disclose is said to instigate the doing of that particular thing. So if any person willfully conceal any material fact, or any person by willful misrepresentation conceal any material fact which he is bound to disclose is said to instigate the doing of that thing. तो अगर कोई पर्सन की ड्यूटी है कोई फैक्ट को डिस्क्लोज करने की और वो इंटेंशनली विलफुली उसको कंसील करता है या अपने मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए उसको कंसील करता है, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन अबेटमेंट के लिए लायबल रहेगा। एक फैक्ट मेरी बताने की ड्यूटी है और मैं उसको छुपा रहा हूं, मैं अबेटमेंट के लिए लायबल हो सकता हूं। एक्सप्लेनेशन सेकंड टू सेक्शन 107 इज whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act is said to aid the doing of that act. So अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करने के पहले, कमीशन ऑफ एन एक्ट के पहले ऐसी कोई चीज करता है जो फैसिलिटेट कर रहा है, वो एक्ट करने में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मदद कर रहा है, इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट एक्ट। इसका मतलब क्या है कि वो एक्ट करने के लिए उसको मदद की गई है, ऐसा ट्रीट होगा, अबेटमेंट कहलाएगा। अब एक सेक्शन 107 पे पूछा गया क्वेश्चन है, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इंस्टिगेट इंटेंशनली एड्स और एंगेज अनदर पर्सन टू डू अ थिंग इज सेड टू हैव abated such another person, conspired with that person, becomes a member of an unlawful assembly, designed commission of offense। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर स्पेसिफिक मेंशन किया है, फर्स्ट इंस्टिगेट है, सेकंड इंगेज है और थर्ड है इंटेंशनली एड। अगर ये तीनों चीजें आती है तो पर्सन क्या हुआ कि सच पर्सन अबेटेड अनदर पर्सन। सो ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर, अबेटेड सच अनदर पर्सन। तो जहां भी इंस्टिगेशन, इंगेज और इंटेंशनली एड की बात आएगी तो वो पर्सन ने अबेट किया ऐसा ट्रीट होगा। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, अंडर which section of Indian Penal Code provision for the offense of abatement is provided? 106, 107, 108, none of these। तो अगर हम देखें तो ये जो है सेक्शन 106 प्रोवाइड करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। सेक्शन 107 डील्स विद अबेटमेंट ऑफ अ थिंग और सेक्शन 108 डील्स विद अबेटर। सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 107। नाउ उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ अबेटमेंट अंडर इंडियन पीनल कोड? कौन सा मोड नहीं है? इंस्टिगेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ अबेटमेंट। एडिंग इज वन ऑफ द मोड ऑफ अबेटमेंट। कॉन्स्पिरेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ अबेटमेंट, बट अटेम्प्ट इज नॉट द मोड ऑफ अबेटमेंट। तो हम अगर देखें तो इंस्टिगेशन भी मोड ऑफ अबेटमेंट है, एंगेज इन एनी कॉन्स्पिरेसी मतलब कॉन्स्पिरेसी भी मोड ऑफ अबेटमेंट है, एड्स इंटेंशनली एडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ अबेटमेंट, बट अटेम्प्ट इज नॉट अ मोड ऑफ अबेटमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज अटेम्प्ट। मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अबेटर्स लायबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफेंडर। If the abater is innocent, the principal offender is also not liable. Abater and principal offender may be differently liable for different offense. The principal offender must have the same guilty mind as that of abater. तो यहाँ पर third option is the correct answer. Abater and principal offender may be differently liable for different offense. तो दोनों differently liable हो सकते हैं different offense के लिए। तो अगर मैं कोई एक एक्ट करने के लिए अबेट करता हूं, इंस्टिगेट करता हूं किसी पर्सन को और वही एक्ट करते हुए और एक आधा ऑफेंस करता होगा तो वो दो ऑफेंस के लिए लायबल हो सकता है। बीइंग अबेटर, जो ऑफेंस के लिए मैंने उसको अबेट किया था उसके लिए मैं लायबल रहूंगा। तो दोनों डिफरेंटली लायबल हो सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट वन। प्रोबेबल क्वेश्चन 107 पे पूछा जा सकता है एग्जामिनर के जरिए, अंडर इंडियन पिनल कोड देयर कैन बी अबेटमेंट टू अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एन इन्फेंट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। अगर हम देखें तो अबेटमेंट किसको किया जा सकता है? तो यहां पर अनसाउंड माइंड पर्सन को भी अबेट किया जा सकता है, इन्फेंट को भी अबेट किया जा सकता है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, बोथ ए एंड बी। नाउ सेक्शन 108,
abater. Who is called abater? That is mentioned under section 108. A person abates an offense. A person abates an offense who either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of abater. A person abates an offense. पर्सन ने अबेटमेंट किया ऑफेंस के लिए कब ट्रीट होगा? हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो ऑफेंस को अबेट कर रहा है, हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो ऑफेंस हुआ है उसको उसने अबेट किया है, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, या ऐसे एक्ट को अबेट किया उसने कि जो ऑफेंस हो सकता है, जो ऑफेंस हो सकता था. इफ committed by a person capable of law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater. तो अगर वो पर्सन करता तो उसकी लायबिलिटी अबेटर के जैसी ही होती, वो कैपेबल है वो एक्ट करने के लिए. और सपोज कोई पर्सन वो एक्ट करने के लिए कैपेबल है और मैं उसको वो एक्ट करने के लिए उकसा रहा हूं, तो आई विल बी कॉल्ड एज एन अबेटर, तो मैं अबेटर कहलाऊंगा. एक्सप्लेनेशन फर्स्ट इज मेंशन, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट. देखो, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन, किसी पर्सन की कोई ड्यूटी है कोई एक्ट करने की, और मैं उसको अबेट कर रहा हूं. क्या कह रहा हूं? मैं उसको इंस्टिगेट कर रहा हूं वो काम नहीं करने के लिए. आई एम अबेटिंग दैट पर्सन फॉर इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट. वो एक्ट जो करने की उसकी ड्यूटी है मैं उसको नहीं करने दे रहा हूं, मैं उसको उकसा रहा हूं नहीं करने के लिए. मे अमाउंट टू एन ऑफेंस, ये ऑफेंस हो सकता है. मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट. हालांकि वो ड्यूटी है दूसरे पर्सन की, वो एक्ट करने की दूसरे पर्सन की ड्यूटी है. मैं फॉर एग्जांपल अबेटर हूं, मेरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन मैं उसको वो नहीं करने के लिए उकसा रहा हूं, तो आई मे बी अ अबेटर, मैं अबेटर हो सकता हूं और आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ abatement. Explanation second is there. To constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed. तो abatement के offense के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो एक्ट करने के लिए इंस्टिगेट किया, अबेट किया, वो एक्ट होना ही चाहिए. और that the effect requisite the constitute the offense should be caused, या ऐसे essential कि जो रहे तभी ऑफेंस होगा, वो रहना जरूरी नहीं है. मैंने जो अबेट किया वह ऑफेंस हो या ना हो, मैं अबेटर बोल के रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूं, ऑफेंस होना जरूरी नहीं है. तो दिस इज द सेकंड एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 108. अब दैट इज द पर्टिकुलर, यहां पर यह एग्जाम्पल में है, गणेश इंस्टिगेट श्याम टू मर्डर डेविड. तो यहां पर गणेश ने श्याम को इंस्टिगेट किया डेविड के मर्डर के लिए. श्याम रिफ्यूजेस टू डू सो. श्याम ने क्या किया? ही रिफ्यूज टू डू सो. उसने बोला कि नहीं, मैं डेविड का मर्डर नहीं करूंगा. गणेश इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग श्याम टू कमिट अ मर्डर. तो यहां पर क्या हो गया? श्याम तो लायबल नहीं रहा, क्योंकि श्याम को इंस्टिगेट किया था गणेश ने डेविड का मर्डर करने के लिए, श्याम ने मना कर दिया, तो देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ श्याम, बट गणेश विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटिंग श्याम टू कमिट अ मर्डर. गणेश श्याम को अबेट करने के लिए, मर्डर के ऑफेंस के लिए, अबेटमेंट करने के लिए गणेश रिस्पॉन्सिबल रहेगा. तो यहां पर श्याम को जो मर्डर के लिए इंस्टिगेट किया था वो तो हुआ ही नहीं, ऑफेंस हुआ ही नहीं, लेकिन गणेश यहां पर रिस्पॉन्सिबल हुआ अबेटमेंट के लिए. तो ये था. देन नाउ एक्सप्लेनेशन थर्ड इज देयर. यहां पर एक्सप्लेनेशन थर्ड है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज. यहां पर एक्सप्लेनेशन थर्ड में ये क्लियर किया गया है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो पर्सन को अबेटमेंट किया जा रहा है वो कैपेबल होना चाहिए लॉ के नजर में ऑफेंस करने के लिए, वो कैपेबल हो या ना हो, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन. और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसको अबेट किया जा रहा है उसका गिल्टी इंटेंशन होना, समझ रहे हो, और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, उसका नॉलेज और इंटेंशन होने की जरूरत नहीं है.
मतलब अगर ऐसा पर्सन जिसको अबेट किया जा रहा है वो कैपेबल भी नहीं है ऑफेंस करने के, तब भी जो अबेट कर रहा है वो अबेटर कहलाएगा, जैसा ये एग्जांपल में है। यहां पर क्या हुआ एग्जांपल में, गणेश विथ अ गिल्टी इंटेंशन अबेट्स पिंटू अ चाइल्ड टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। तो यहां पर गणेश ने पिंटू को अबेट किया। पिंटू जो छोटा बच्चा है, जो लॉ के नजर में ऑफेंस करने के लायक नहीं है। सेक्शन इंडियन पिनल कोड में ये क्लियर किया गया है, जिस बच्चे की एज 7 साल से नीचे है वो इनकैपेबल टू डू एन ऑफेंस, वो ऑफेंस करने के लिए इनकैपेबल है। लेकिन यहां पर गणेश वो बच्चे को इंस्टिगेट कर रहा है ऑफेंस करने के लिए, समझ रहे हो। हियर गणेश वेदर द एक्ट बी कमिटेड और नॉट इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग एन ऑफेंस। अब यहां पर गणेश अबेटमेंट के लिए लायबल रहेगा, भले ही पिंटू ने वो ऑफेंस करने दो या ना करने दो, बट गणेश विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। तो गणेश की लायबिलिटी इसलिए नहीं होगी, ऐसा नहीं है, गणेश लायबल ही रहेगा। गणेश ये डिफेंस नहीं ले सकता कि वो जिसको मैंने अबेट किया वो बच्चा है और उसकी कोई लायबिलिटी ही नहीं ऑफेंस में, तो मेरी लायबिलिटी कहां होगी। एज एन अबेटर गणेश की लायबिलिटी होगी। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट गणेश intending to cause a theft to be committed instigate Sham to take property belonging to David out of David's possession। तो यहां पर क्या किया गणेश ने, क्या किया, intended to cause a theft, चोरी करने के लिए, to be committed instigate Sham to take property belonging to David out of David's possession। instigate किया शाम को, इंटेंशन गणेश का था चोरी करने का, लेकिन उसने शाम को इंस्टिगेट किया, अबेट किया कि डेविड की प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में से लेकर आने के लिए इंस्टिगेट किया। अब होगा ऐसा, गणेश इंड्यूसेस शाम टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम। और यह करते दौरान क्या किया कि गणेश ने शाम को इंड्यूस किया, उसको फंसाया। क्या कहकर फंसाया कि जो डेविड के पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है वो डेविड की नहीं है बल्कि मेरी है। गणेश ने कहा डेविड की प्रॉपर्टी नहीं है वो मेरी है, ऐसा करके शाम को फंसाया उसने। शाम टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ डेविड पोजीशन, शाम ने वो प्रॉपर्टी डेविड के पोजीशन में से लेके आ गया इन गुड फेथ, क्योंकि शाम को ऐसा लगा कि जो डेविड के पोजीशन में प्रॉपर्टी है वो गणेश की है, तो गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी लेके आ गया, बिलीविंग इट टू बी गणेश प्रॉपर्टी। वो ये समझता था कि वो प्रॉपर्टी गणेश की है, गुड फेथ में डेविड के पोजीशन से शाम ने प्रॉपर्टी लेकर आ गया। हियर शाम हैज कमिटेड नो ऑफेंस, यहां पर शाम ने कोई ऑफेंस नहीं किया, बट गणेश इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट। बट यहां पर गणेश तो थेफ्ट के अबेटमेंट के लिए लायबल रहेगा एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज इफ शाम हैड कमिटेड थेफ्ट। तो वो उतनी ही पनिशमेंट के लिए लायबल रहेगा। अगर शाम चोरी करता तो जितना लायबल रहता उतना ही लायबल गणेश रहेगा, गणेश को उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज द प्रोविजन। अभी देखो एक्सप्लेनेशन 4 है, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस को अबेटमेंट करने के लिए जो लायबिलिटी है, जो ऑफेंस होगा, उसी तरीके से द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट भी ऑफेंस ही रहेगा। हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहां पर क्या है, गणेश इंस्टिगेट शाम, गणेश ने इंस्टिगेट किसको किया, उकसाया किसको, शाम को उकसाया। एंड टू इंस्टिगेट डेविड, गणेश ने शाम को इंस्टिगेट किया, क्या कि तुम डेविड को इंस्टिगेट करो टू मर्डर पीटर। समझ रहे हो, गणेश ने इंस्टिगेट किया शाम को यह कह के कि टू इंस्टिगेट डेविड, कि तुम डेविड को उकसाओ पीटर का मर्डर करने के लिए। तो यहां पर गणेश ने किया इंस्टिगेट शाम को, शाम ने किया डेविड को पीटर के मर्डर के लिए। सो शाम अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट डेविड टू मर्डर पीटर, तो शाम ने डेविड को इंस्टिगेट किया पीटर के मर्डर के लिए। अब यहां पर क्या हुआ, डेविड कमिट्स दैट ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शाम्स इंस्टिगेशन। तो डेविड ने पीटर का मर्डर कर दिया, किसके कॉन्सिक्वेंसेस में, शाम के इंस्टिगेशन में। शाम ने जो अबिट किया था उसके चलते डेविड ने पीटर का मर्डर कर दिया। अब शाम इज लायबल टू बी पनिश फॉर हिज ऑफेंस विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर। तो शाम लायबल क्या है, शाम इज लायबल टू बी पनिश फॉर हिज ऑफेंस विद द पनिशमेंट ऑफ मर्डर। तो मर्डर के लिए शाम यहां पर लायबल रहेगा। एज गणेश इंस्टिगेटेड शाम टू कमिट द ऑफेंस, गणेश इज ऑल्सो लायबल टू बी सेम पनिशमेंट। तो यहां पर अबेटमेंट का अबेटमेंट हुआ तो यहां पर गणेश भी लायबल, शाम भी लायबल और इक्वल टू डेविड भी लायबल। तो दोनों गणेश और शाम अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे और डेविड मर्डर के लिए लायबल होगा। तो दैट इज द लायबिलिटी अंडर सेक्शन
108. Now explanation 5 is there. It is not necessary to the commission of the offense of abatement by conspiracy that the abater should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engage in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. तो अगर कोई पर्सन कॉन्स्पिरेसी करता है, कोई कॉन्स्पिरेसी में इंटर होता है, it is not necessary to the commission of offense of abatement by conspiracy. abatement by conspiracy के offense के लिए जरूरी नहीं है that the abater should concert the offense with the person who commits it. कि abater उसके साथ ही होना, उसके साथ मिलकर उसने offense करना जरूरी नहीं है. It is sufficient if he engage in the conspiracy in pursuance of such the offense is committed. इतना ही sufficient होगा कि वो conspiracy में involve था जिस conspiracy के चलते offense हुआ. अभी देखिए, गणेश कॉन्सर्ट विथ श्याम अ प्लान फॉर पॉइजनिंग डेविड. तो गणेश ने श्याम के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी किया. क्या क्या प्लान किया कि वो डेविड को पॉइजन देगा. अब हुआ ऐसा, इट इज एग्रीड दैट गणेश शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन. और दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ कि जहर कौन देगा, गणेश जहर देगा. यहां पर श्याम देन एक्सप्लेन द प्लान टू पीटर मेंशनिंग दैट a third person is to administer the poison but without mentioning Ganesh name. तो श्याम ने क्या किया, पीटर को यह बताया कि तो कोई तीसरा पर्सन जहर देगा और उसने गणेश का नाम यहां पर नहीं बताया. समझ रहे हो. पीटर प्रोक्योर्स द पॉइजन टू श्याम एंड सेम इज एडमिनिस्टर्ड बाय गणेश टू एंड डेविड डाइस. तो पीटर ने क्या किया, वो जहर लाकर श्याम को दिया और वही जहर गणेश ने डेविड को पिला दिया और डेविड की डेथ हो गई. एक्सप्लेनेशन को समझिए. अब यहां क्या हुआ कि डेविड की डेथ हो गई, तब भी पीटर जो है वो अबेटमेंट के लिए लायबल होगा, गणेश अबेटमेंट के लिए लायबल होगा. तो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो या ना हो, तब भी ये सब चीजें, पीटर भी वहां पर इन्वॉल्व हो गया, गणेश का नाम उसने नहीं बताया, तब भी पीटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्योंकि उसने जहर दिया था. तो अबेटमेंट के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा. अबेटर के लिए पे पूछे गए क्वेश्चन है, अबेटर इज अ पर्सन, प्रोबेबल क्वेश्चन है, हु कमिट्स द ऑफेंस, हु इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड, हु इज इनोसेंट. तो हु इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, अबेटर किसको बोलेंगे, हु इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस. नाउ सेक्शन 108A, abatement in India of offense outside India. So a person abates an offense within the meaning of this code who in India abates the commission of any act without and beyond India which would constitute an offense if committed in India. ऐसा offense जो बाहर हुआ है अगर वो इंडिया में होता तो offense कहलाता. ऐसे offense के लिए abatement अगर कोई करता है तो वो पर्सन सेक्शन 108 में रिस्पॉन्सिबल रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, श्याम इन इंडिया इंस्टिगेट डेविड अ फॉरेनर इन गोवा टू कमिट अ मर्डर इन गोवा. तो श्याम ने क्या किया, डेविड को इंस्टिगेट किया गोवा में, डेविड फॉरेनर है और डेविड को इंस्टिगेट किया गोवा में मर्डर करने के लिए. अब हुआ ऐसा, श्याम इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग अ मर्डर. यहां पर श्याम लायबल रहेगा क्योंकि वो फॉरेनर है, वो जो जिसको इंस्टिगेट किया वो फॉरेनर है. अगर वो फॉरेनर को फॉर एग्जांपल अगर दूसरे कंट्री में जाके उसके कंट्री में जाके इंस्टिगेट करता तो अबेटमेंट होता. यहां पर इंस्टिगेट किया तब भी सेक्शन 108 के हिसाब से श्याम इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग a murder. So this is a particular provision which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.